Sat Sri Akal, Namaskar, welcome to the second lecture of Socialism in Europe and the Russian Revolutions. In first lecture, what we have discussed, let me recap it little in a small one, only within 1 minute. What we have learned, how the socialism feeling has been evolved in Europe, that we have learned. And we have learned the beginning of industrializations, the period of rapid industrial development, that also we have studied, and the effect of the industrialization, that also we have learned in the previous class. Today we are going to learn, and some enlightenment thinkers were there, those who have given the ideas of socialism, idea of socialism, that also we have learned in the previous class. Today we are moving a step forward to Russia. As I told you in the first lecture itself, that Russia is the part of Europe continent as well as Asian continent. 23% of the Russian landmass falls in the Europe continent. So definitely the socialism which has evolved in the Europe, that affected in the Russia also. As I told you, there was a problem of industrializations. That means industrialization, it has two aspects. One is good and one other is bad. Good is what which started increasing the daily usable goods, started producing during that time. And it has negative fact is that the industries were run by the industrialist, capitalist, those who were very keen for their profit maximizations. They were not looking into the workers' benefits. Workers were suffering from various problems while working in the industries. So what the problems they were facing, that we have already discussed in the previous class. Today we are moving the same problem spread, or we can say visible in Russia too. And how does Russia overcome the such problems, that we will discuss. Chapter is very small, but chapter is very complicated in your point of view, right? So these complications must be converted into the easy method. That is what I am trying my best. So let's move to the Russian Revolution. Russian Revolution is the country in one of the least industrialized of European states. Situation was reversed. ये समझना, this situation was reversed. मतलब least industrialization in the sense the industrialization was not done in major industries were not there, या many industries were not there, very few are there, on fingertips we can say. Socialists took over the government in Russia. रशिया का मैं सिचुएशन आपको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ. सोशलिस्ट जो थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सोशलिस्ट क्या है, या प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था सोशलिस्ट क्या है. Socialists overtook the government in Russia through the October Revolution in 1917. 1917 there was a revolution, October Revolution it was known as. We can say 1917 there was series of revolution. February Revolution, after that October Revolution. After the October Revolution, this socialist owned the government. They become the government in Russia. मोनार्क जो था, जो हर कोई कंट्री मोनार्क था, वैसे जो मोनार्क था रशिया में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के. जो मोनार्क वहां पे था, ये मोनार्क खत्म हुआ फरवरी 1917 में. जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, यू कैन रिकॉल, दिमाग आपका थोड़ा पीछे ले जाओ और याद करो
1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन शुरू होता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। साइलेंट नहीं सुनना है। जब मैं बोलो हाँ कि ना बोला अनम्यूट करो और इमीडिएटली आंसर करो। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। 1789 में फ्रांस में क्या होता है? मोनार्क, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का गवर्नमेंट शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है और वहां के राजा को वो वीटो पावर दी जाती है। इलेक्शन होती है। भले ही इलेक्शन कैसे होता है, सबको इलेक्शन की राइट नहीं मिलता। एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाली कॉन्सेप्ट लाई गई थी। जो भी हुआ था, मोनार्क का एंड हुआ था कि नहीं हुआ था पार्शियली? बोलो हाँ कि ना? यस सर। हुआ था। जैसे मोनार्क खत्म हो गया था, वैसे ही फरवरी 1917 रशिया में क्या हुआ था? मोनार्क खत्म हुआ था। अभी बोलोगे सर जस्ट नाउ यू टोल्ड सोशलिस्ट गवर्नमेंट ओवरटुक द गवर्नमेंट इन रशिया, socialist overtook the government in Russia October 1917, or here you are telling what? Monarch abdicated. Monarchs were abdicated in February 1917. और इन जो ये बीच में जो महीना है, इतने महीने में क्या कर रहे थे? किन्नी बजा रहे थे ऐसे ऐसे। बोलो हाँ कि ना? सर देयर मस्ट हैव बीन सम riots. ये नहीं बजा रहे थे, बाजा नहीं बजा रहे थे। तक दिना दिन दिन दिना तक दिना दिन दिन दिना बजा रहे थे ना, फरवरी से अक्टूबर तक। Sir, they must have been putting efforts to bring down monarchy. नहीं, जैसे 1789 में आया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, फिर क्या हुआ? जोकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, फिर उसने क्या धोखा दिया? वी हैव लर्न, धोखा दिया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने फिर उसको खत्म किए। फिर सॉरी 1789 के बाद जो राजा को वीटो पावर दिए थे उसने धोखा दिया। फिर जोकोबिन क्लब आया। जोकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वहां का चीफ बना, चांसलर बना। फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने धोखा दिया। धोखा देने के बाद क्या हुआ? याद करो, डायरेक्टरी रूल्स आया था, 5 हेड बने थे। उस समय वो परफेक्ट डेमोक्रेटिक बना था जब वो 5 लोगों की हेड बनी थी। उसके बाद बात अलग है, नेपोलियन आया बोला ढिस ढिस ढिस, नेपोलियन आया बोला ढिस ढिस ढिस, बात अलग है। मगर 1789 से लेकर 1794 जब रीन ऑफ टेरर वाला आप नाम याद करोगे, रीन ऑफ टेरर के बाद क्या हुआ था? परफेक्ट डायरेक्टरी रूल्स एस्टैब्लिश हो चुका था। कहां पे? फ्रांस में। मेरा बोलने का मतलब है, जब फरवरी में राजा को एब्डिकेटेड कर दिया गया, मोनार्क को एब्डिकेटेड किया गया, कहां पे? रशिया में। अक्टूबर तक यहां पे एक दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिस गवर्नमेंट ने धोखा दिया, फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना 1917 में। मैं एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूं, गेटिंग? समझ रहे हो ना? मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को बता रहा हूं, समझ रहे हैं? बोलो हाँ कि ना? No sir. Not getting? Okay. Again you listen. French Revolution after 1789, what happened? Constitutional monarch. Constitutional monarch, Yes, sir. we have learned in the French Revolution, the king has given what? Dhoka. They started making what? Alliance with the other countries. Who? King started making. जिसके वजह से क्या हुआ? जोकोबिन क्लब का फॉर्म हुआ और जोकोबिन क्लब वहां पे गवर्नमेंट बनाता है। फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आता है, फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर धोखा देता है, फिर डायरेक्टरी रूल आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। इस तरीके से फिर नेपोलियन बोनापार्ट आके फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो। यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फरवरी में जो राजा थे 1917 एब्डिकेटेड हो गए, खत्म हो गया। अक्टूबर तक क्या हुआ? फरवरी के बाद एक ऐसा गवर्नमेंट बना था जो गवर्नमेंट वहां पे चला रहा था अपना राज, मगर वो गवर्नमेंट भी लोगों को धोखा दिया, इसीलिए अक्टूबर में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आती। तो फरवरी से अक्टूबर तक सर टाइप मतलब ऑफ गवर्नमेंट वहां पे एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बारे में इन डिटेल वी विल डिस्कस। अंडरस्टूड? Yes sir. Sir, that means we are trying to relate the French Revolution and its aftermath with this one. Yeah, that is what I am relating just. Yes sir. बेटा मैंने ये बताया था ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में जब आग छीं होता है तो पूरे यूरोप को क्या होता है? क्या हो जाता है? जुकाम जुकाम।
तो सेम थिंग रशिया को भी होना था, समझ लो, इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, दैट इज व्हाई आई एम रिलेटिंग दिस वन। ओके, यस सर। तो इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन जैसे हुआ था वैसे बीच में फरवरी रेवोल्यूशन एप्लीकेटेड हुआ, फिर अक्टूबर तक क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था रशिया में, अक्टूबर में सोशलिस्ट को ओवरटुक करता है। कैसे करता है, क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इटसेल्फ इन ब्रीफ, अंडरस्टूड? आई एम गिविंग यू ओवरव्यू जस्ट नाउ ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। देन हाउ डिड दिस कम अबाउट, ऐसा कैसे हुआ? What were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? जब रेवोल्यूशन हुआ तब रशिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, ये हम डिस्कस करें। दूसरा बात, टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट्स लुक इनटू द रशियन फ्यू इयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन के पहले तक का थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, समझ के। ये स्लाइड का मतलब आप समझे ना, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। यूरोप क्या था, लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज था। तो फरवरी अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में क्या होता है, सोशलिस्ट ओवरटुक करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। फरवरी 1917 में वहां पे मोनार्क रूल खत्म हो जाता है, जैसे फ्रांस में 1789 में खत्म हुआ था, यहाँ फरवरी 1917 में खत्म हो जाता है। ये सब कहानी को क्या बोलते हैं, रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये कहानी को क्या बोलते हैं, रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? वहां पे भी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम थी। वहां पे अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है। उसके बाद फरवरी में गवर्नमेंट भी उसका मोनार्क रूल खत्म हो गया होता है। ये सब ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, that is what I am discussing with you, and we are going to discuss in this chapter briefly in Russian Revolution. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Everyone have Yes, understood? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now Yes, sir. Yes, sir. how did this come out? What were the social political conditions in Russia when the revolution occurred? And to answer these questions, let's move into it. In 1914, visible? Yes, sir. In 1914, एक राजा थे. The king name was Tsar Nicholas II. Just in the previous slide, what I told you. To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. Revolution होने से पहले. Revolution तो 1917 में शुरू हुआ. हम थोड़ा पीछे जाके कंडीशन को समझते हैं कि ये रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ. समझ गए? बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Then I am moving forward. Yes. 1914, there was a king. There was a king. King. What was the name? Tsar Nicholas II. Was ruling. Tsar Nicholas II. In Russia. Russian Empire का जो king था वो कौन था? Tsar Nicholas II. Right. Beside the territory around, इसका जो territory था, वो territory कहाँ? मॉस्को, आपको पता है मॉस्को कैपिटल सिटी तब भी था. रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डेज, आज के दिन में रशियन एम्पायर हम देखें तो ये सब एरिया तब रशियन एम्पायर में गिने जाते थे. दे आर फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian state also, as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. These are the Asian states. समझ रहे हो? नीचे मैंने Asian state दिया. आपको यहाँ पे क्वेश्चन MCQ आ सकता है, NTSA क्वेश्चन. 10 NTSA क्वेश्चन. 10 का मतलब क्या है? Allot दे रहा हूँ. 10 क्या? NTSA क्वेश्चन. What are named the Asian countries which were the part of Russian Empire in 1914? What was the question? Name the Asian countries which were the part of Russian Empire in 1914. Name now. Tell me
by seeing the screen? Georgia, Armenia, Azerbaijan. Very good. Tell me the European countries. So Finland, Latvia, Sir, Lithuania, present day Finland, Finland, Latvia, Latvia, Lithuania, Lithuania, Estonia, parts of Estonia, Poland, part of Ukraine. Poland, Ukraine. Poland, Ukraine, and Belarus. Belarus. Understood? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. These are the part. हम अभी ऑस्ट्रिया में जो हमने देखा ना, रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन शुरू हो गया. अभी ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ? इसके पीछे क्या क्या कारण थे? What was the reason behind? That is what we are now digging. क्या कर रहे हैं? खोलताल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसके प्रीवियस को जानना है. इसीलिए 1914 में हमने देखा कि द रशियन एम्पायर द किंग वाज Tsar Nicholas II, and what was the areas in the present day were covered in Russian empire. That is what we have. इसमें अभी देखते हैं कि रिलीजन कैसा था. कैसा था? रिलीजन कैसे थे? किस टाइप के लोग रहते थे? भारत में आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, बहुत सारे लोग रहते हैं. उस समय जो रशियन एम्पायर था, ड्यूरिंग दैट टाइम इन रशियन एम्पायर देयर आर द मेनी रिलीजन्स वर लिविंग. डेफिनेटली इट वाज अ डिक्टेटर रूल. डेफिनेटली इट वाज अ मोनार्क रूल. राजा जिस रिलीजन का होगा उसी रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था कि उस राज्य में दूसरे लोग नहीं रह पाते. ठीक है. तो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो मेजॉरिटी थे वो कौन थे भाई? Christians. क्रिश्चियंस थे. Christian, राइट. Russian Which Orthodox had Christian. grown out of the Greek Orthodox Church. जो रशियन ऑर्थोडॉक्स थे, ये कैसे ग्रो हुआ था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च Orthodox रिलेटेड Church. में आते हैं. राइट. 10-10-10. NTSC question number 2. Russian Orthodox were grown from which country's Orthodox Church? Greece. Greek. Understood? Yes, But the sir. empire also include Catholics, Protestants, Muslims, and Buddhists. Protestant is the people. Catholic Christianist जो हुआ करते थे, वो Sir, from the लोग Catholic जैसे हम Church. हिंदू में देखते हैं. अभी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? I'm trying to make you understand. Just try to understand it. In Hindu religion, everybody knows there are the जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ब्राह्मण, शूद्र, ये वो है कि नहीं है? है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सेम इन कैथोलिक ऑल्सो. हम अभी हिंदू रिलीजन में जो इतने सारे स्लैब्स देखते हैं, ये स्लैब्स क्यों आए हैं? व्हाई दिस स्लैब्स आर मेड? बेस्ड ऑन Sir, देयर diversity मेजॉरिटी एंड of- माइनॉरिटी, बेस्ड ऑन देयर वर्क. Yes, sir. Yes or not? So in the same Yes, sir. in Christian also, in Christian religion also, there are the Catholic and Protestants. According to their work condition, we can say majority or minority. We can. Sir, the church they follow, like Catholic Church. There are the Baptist Church, Catholic Church. Yes or not? Sir, Ah, Vatican Church. Baptist Church also are there. Yes, Only sir. Baptist group of the small group of the Christian people, there were the Baptist. They were going to the Baptist Church only for the prayers, right? So Muslim, Buddhist, Catholic, and Protestants also living in the Russian Empire. What we have learned from this slide? We have learned that we just moved back to from 1917 to 1914 to know that who was the king, who was the ruler of the Russian Empire, and what are the current days countries where falls under the Russian Empire during that time. Russian countries and European countries and Asian countries. And then we have learned the majority of religions and other religions who were living under the Russian Empire during that time. Clear? यहाँ तक बात clear हुआ? This is the Russian Empire during that time. You can see the Poland area also is what came into this. This is the present days map. Belarus, you can see that was the part of the Russian Empire. Ukraine, some part were in Russian Empire. You can say this all the areas were what the Russian Empire, and Poland, some part also in the
Russian Empire. Roman also some Russian Empire parts. This is Finland what also you can started. see in the map. You can compare it, which are the countries or which are the present day territories where falls in the Russian Empire during that time. Understood? Let's move to the next one. Russian Revolution. As I told you, Russia was ruled by the Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II. Yes or not? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So it was ruled by the Tsar Nicholas II. Here I am going to categorize a little bit your total total Russian Revolution. First, what we will learn? First, we will learn that how was the Russian Revolution during that time. Russian Revolution in the sense, first we will learn that who were ruling and what were the areas that we have already discussed. How was the economy and society of that country, that Russian Empire का working and economic condition कैसा था, society कैसा था, वहां पे workers कैसे काम करते थे, और peasants जो कंट्री साइड में रहते थे, how they were, what was their livelihood, what were their conditions during this Tsar Nicholas rule. Tsar Nicholas आपको साइड में दिख रहे हैं? Yes, he Yes, is sir. Tsar Yes, sir. Nicholas, right? He is Tsar Nicholas II who is ruling Yes, sir. at that time. So here first we will discuss that economy and society, how it is. About 85% of the Russian population, were engaged in the agricultural activity. Industries were located only in few places. मतलब industry इतने ज़्यादा नहीं थे. There were very few in numbers in the during Russian Empire, we can say, during Tsar Nicholas II, during 1914 we can say. 1914 का status हम discuss कर रहे हैं. तो उस समय 85% population were engaged in the agricultural activity. Industries were very few. On fingertip we can say they were located in Saint Petersburg and Moscow. Saint Petersburg and Moscow, ये दो जगह में ही हमको कुछ industries थे उस समय. Right? It was in the 1890 that the industries began to set up in the Russia. If 10 NTSC question number 3. When was industries began to be established in Russia? In 1890s, right? 90. 1890s, industries began to be established in 1890s. Russia, but 1914 तक the industries were very few in numbers. They were situated, जितने भी industries थे, they were situated in the Saint Petersburg and Moscow में थे. बाकी एरिया ही नहीं, समझ गए. और रशिया बहुत लार्जेस्ट कंट्री था, लार्जेस्ट एम्पायर था इन एरिया वाइज ड्यूरिंग दैट टाइम. और इंडस्ट्री इतने कम थे, जाहिर सी बात है कि बाकी जो लोग होंगे वो तो कोई सर्विस सेक्टर तो उतना था नहीं, बाकी लोग किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे? डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक्टिविटी में. एग्रीकल्चर, राइट. एग्रीकल्चर. रशिया जापान से लेकर यूरोप तक रशिया फैला हुआ है, और इतने बड़े कंट्री में सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को में ही 1914 में इंडस्ट्रीज होंगे, तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा? बाकी एरिया में तो लोग काम करने से रहे, तो वो लोग किस काम में इन्वॉल्व रहेंगे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. एग्रीकल्चर. तो समटाइम्स द वर्कर हैड टू वर्क. जो इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्री का कंडीशन कैसा था वो डिस्कस कर रहे. ये इंडस्ट्री का कंडीशन ऐसा था कि वर्कर्स हैव टू वर्क what 15 hours in a day 15 hours at and low low wages. wages. अभी और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, 1890s में इंडस्ट्रीज क्यों सेट हुए थे, बिगिन हुए थे रशिया में? Why the industries were started setting up या establishing after 1890s or during 1890s in the Russia? Because 1890s में क्या हुआ था बेटा, एक चीज समझना. In 1890s the railway has started expanded. रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट की गए और रेलवे एक्सपैंड हुआ in 1890s in Russia. That is why industry started establishing in the
रशिया, क्योंकि रेलवे एस्टैब्लिश हुआ तो डेफिनेटली raw materials can be transported, finished good can be transported, peoples also can be traveled from one place to another place, their workforce also will be increased. This all the things boost up the industries in 19th century, sorry 1890s in the Russia. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. 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 Then Yes, what sir. was the Yes, sir. condition? Yes. By early 19th century, जो आपको दिख रहे हैं सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को में था इंडस्ट्रीज, वो सब इंडस्ट्री इतने एडवांस इंडस्ट्रीज नहीं थे. They were very small industries and craftsman in the sense maximum people those who belongs to the activities with those who are doing like craft like activity, they were known as craftsman. ये लोगों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था. ऐसे कोई हाईली बोलते ना कि एडवांस इंडस्ट्रीज ऐसा कोई एस्टैब्लिश उस समय नहीं हुआ था बाय द 1900, राइट. Most industries were owned by the private owners. Most industries were owned by the private owners. That was socially not owned during that time. Private owners, बहुत सारे industries थे, capitalists, they were owning the industries during that time. And people have to work 15 hours in a day, and wages are very low. They have to work 15 hours in a day, and wages are very low. That is one of the very difficult condition in the Russia. Workers in Russia came from different backgrounds. The worker formed a union, declared strikes whenever the work condition in the factories deteriorated. ये समझना, जब ये जो workers जो काम कर रहे थे, they were belongs to different background. Somewhere belongs to agricultural family, somewhere belongs to the poultry family, somewhere belongs to, that means बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. तो ये लोग क्या करते थे, इतने सारे काम करना, इतने समय काम करना, वेजेस कम और कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसा था, ऑलरेडी इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो, दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज के बाद कैसा प्रॉब्लम आया था, लोग कैसे सफर कर रहे थे. तो यही सब सफरिंग के चलते जो वर्कर थे, दे स्टार्टेड मेकिंग यूनियंस, एंड जब भी उनको मुसीबत आती थी, दे वर जस्ट डिक्लेयरिंग स्ट्राइक against the industrialist during that time. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. समझ में Yes, आया? sir. Short point तक. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Here one more Yes, thing sir. I want to share with you. उस समय की बात और एक शेयर Yes, करनी है. sir. बहुत सारे चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि this is for the lecture notes. I am just making you understand the background what exactly happens. उस समय मेटल वर्कर्स थे, मैंने जैसा आपको बताया, many workers belongs to different backgrounds. जो metal workers थे, those who we can say blacksmith, goldsmith, these are metal workers. Due to their heavy demand and their work is skillful work, वो लोग खुद को क्या बोलते थे, वर्किंग क्लास में अपने आप को अपर क्लास में रखते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो स्किलफुल वर्क था और उनका काम हैवी वर्क था. इसीलिए ये जो मेटल वर्कर्स थे, जो भी मेटल वर्कर्स थे उस समय के मेटल वर्कर्स अपने आप को थोड़ा ऊपर स्थाई में रखते थे, ऊपर दर्जा में रखते थे, और रेस्ट ऑफ द वर्कर्स वेयर व्हाट अदर वर्किंग कैटेगरी में आते थे. मतलब इन लोगों का एक यूनियन, उन लोगों का यूनियन, ऐसे बहुत सारे यूनियन उस समय बन चुके थे. अंडरस्टूड? Yes, sir. ये ऐसे इतने Yes, सारे sir. यूनियन बनने के बाद भी जब भी प्रॉब्लम आती थी, जब भी मुसीबतें आती थी, all the workers coming together and declaring strike whenever they face the problem. इसमें और एक चीज है, the workforce, जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, 31% of the labor force, those who are working in the industries, 31% were the women's. 31% were the women's working as a laborer in the industries during that time. और ये women's को, खास तौर में men's को जितने पैसे मिलते थे, wages जितना मिलता था, उससे
2/3 हम बोल सकते हैं, इतना कम वेजेस उनको मिलता था। किसको? वुमेन्स को। The labor force, those who are working in the industries during that time, 31% were the women, and they were getting very low wages as compared to the men in the industries. और ये लोग बहुत सारे यूनियन भी बनाए थे, वुमेन्स वाली बनी थी, एंड दे वर आल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। और वो जब काम नहीं मिलता था इंडस्ट्रीज को, सॉरी, जब इंडस्ट्रीज में काम नहीं हुआ करता था, तब ये लोगों को क्या कर दिया जाता था? भगा दिया जाता था। दे वर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो ऐसी एक सिचुएशन उस समय क्या हुआ था? क्रिएट हुई थी। और उस समय 1896 और 1897, उस समय एक मेटल इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ, जो मैं आपको मेटल कैटेगरी का मेटल वर्कर्स की बात बताया, दिस मेटल वर्कर्स वर डेवलप्ड इन द 1896 एंड 1897। उस समय ये क्या कर रहे थे? अपना एक दर्जा सोसाइटी में ऊपर करके रखते थे, मगर जब भी मुसीबतें आती थी, सब एक साथ होके क्या करते थे? फाइट करते थे या प्रोटेस्ट करते थे। दिस इज, जितने भी लैंड थे रशिया में, मोस्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू होम? नोबिलिटी एंड चर्चेस, एज लाइक फ्रांस। जैसे फ्रांस की है ना, वैसे ही फ्रांस में हमने देखा था थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सेम हियर आल्सो, most of the lands were belongs to nobility and churches. Russian peasants, अभी peasant वाली कंडीशन भी थोड़ा देख लेते हैं। जो peasants थे कंट्री साइड में, they have no respect to the nobilities, because ये लोग जो काम करते थे नोबिलिटीज या चर्चेस के लैंड में काम करते थे। मगर रशिया में, फ्रांस में आपने याद किया था, फ्रांस को याद करो, वहां पे एक रेस्पेक्ट था नोबिलिटी के, डर के रहते थे। मगर रशिया में है उल्टा। क्या? रशिया में लोग नोबिलिटी को डरते ही नहीं थे। ऐसा भी होता था जब प्रॉब्लम आती थी, या लैंड जो ओनर्स थे, दोज हु वर द लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग दैट टाइम, कुछ भी दिक्कत करते थे, ये लोग रातों रात उनके ऊपर अटैक करते थे और उनका मर्डर कर देते थे। बात समझ रहे हो ना? मर्डर कर देते थे, खत्म कर देते थे। और ऐसा जब भी कोई people were highly radical. Sir, Russian people were mostly radicals. Yeah, radicals. They were not supporting the gradual changes. जब भी कोई दिक्कत सपोज उसके अंदर थे, मगर जो गुस्से लाती थे, that means angry people, we can say they were hyper tension बोलते हैं। Those people कुछ भी बोला, कुछ लैंडलॉर्ड बोला या नोबिलिटी बोला, तो रातों रात गए उसको खत्म कर दिया, जमीन वमीन ले। और जो भी जमीन उससे वो लेते थे, ये कलेक्टिव कल्टीवेशन करते थे। कलेक्टिव कल्टीवेशन इन द सेंस, वो जमीन को ले जाते थे और 10, 12, 15 फार्मर क्या करते थे? काम करते थे। काम करने के बाद जमीन क्या होता था? बांट देंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगी, तो क्रॉपिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए कलेक्टिव एग्रीकल्चर वो करते थे। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो उसमें क्या करते थे ये लोग? सब मिल भाग के काम करते थे, और जो भी प्रॉफिट आती थी सब अपने आप में शेयर कर लेते थे। वैसे पीसेंट थे कहाँ पे? पीजेंट थे कहाँ पे? रशिया। ये रशिया के पीजेंट कुछ ज्यादा ही क्या थे? गुस्से, वायलेंट, हाइपर टेंशन वाले थे। अनलाइक फ्रांस में जैसे हमने देखा था, वैसे वो लोग नहीं थे। इन 1902 में क्या हुआ? दिस लार्ज स्केल इट हैपेंड। ये जो केस मैं आपको बताया, साउदर्न रशिया में 1902 में ज्यादातर दिखाई देता था। 1902 में ज्यादातर ऐसा केसेस साउदर्न रशिया में दिखाई देता था। अभी बात ये आती है, ये जो वर्किंग क्लास के ग्रुप बनी थी, ये लोग क्या किए थे? बहुत सारे ग्रुप बने, जैसे मैंने यूनियन आपको बताया, उसमें से एक यूनियन आप देखोगे यहाँ पे, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग दैट टाइम। व्हाट वाज फाउंडेड? Russian Socialist Democratic Workers Party was founded in 1898. 10. Important question for the NTSC. The Social Democratic Workers Party was founded in the 1898 by the socialists. Some peoples are there, as we have learned. Many peoples are there, those who started supporting the idea of socialist. This socialist group in the Russia started, they formed a workers party.
that was known as Russian Social Democratic Workers Party, which was found in the 1898. मगर फॉर्म तो कर दिया, मगर जो परफॉर्म करना था, जो एक्टिविटीज करना था, वो पॉसिबल यहां पे नहीं हो पा रहा था. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, एक्सेप्ट द Tsar Nicholas II, all the parties were illegal. All the parties were illegal, and this workers' party also known as illegal organization during that time. मगर फिर भी ये लोग क्या करते थे? Magazines, small posters, small writings like poets, ये सब राइटिंग करके लोगों के अंदर क्या स्प्रेड करते थे? क्या करते थे? सोशलिस्ट आइडिया को लोगों के अंदर स्प्रेड कर रहे थे. क्लियर टू यू? अंडरस्टूड? उसके बाद क्या होता है? Yes, Yes, sir. दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम होता है. ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1900. ये पार्टी कब फॉर्म होता है? 1900 में फॉर्म होता है. 1900. सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. अभी आप समझना ये दो पार्टी उस समय क्यों फ्रेम हुए थे, इसका मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बताया? मेटल वर्कर्स अपने आप को क्या कर रहे थे? थोड़ा ऊंचा दर्जा दिए थे सोसाइटी, क्योंकि उनका वर्क ज्यादा स्किलफुल वर्क. ये जो इसी बेस में ये दो पार्टियां उस समय बन गई थी. एक 1898 में बनी थी और एक 1900 में बनी थी. और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन द सेंस दोज हु वर बिलीविंग इन द रेवोल्यूशंस, लाइक ये जो मेटल वर्कर्स थे उन्हीं के कैटेगरी इसमें आती. और ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनी थी, द सोशलिस्ट डेमोक्रेट डिफरेंट फ्रॉम द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑन द इशू ऑफ फार्मर्स. फार्मर के इशू में ये अलग थे. The later under Lenin, मतलब जो लेलिन थे, लेलिन किसके सपोर्टर थे? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के हेड थे. कौन? लेलिन. इसको हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे. ये थे, ये क्या करते थे? ये बिलीव करते थे कि peasants cannot be part of socialist movement, as some peasants were poor, some were rich, and some even employed worker on their fields. अभी ये समझना, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी क्या करते थे? वो भी पीजेंट के इशू को ही राइज करते थे. ये वाला पार्टी भी क्या कर रहा था? पीजेंट के इशू को भी राइज करता था. ये भी राइज करता था, मगर ये ओवरऑल इशू को राइज करते थे. इनका व्यू कैसे डिफरेंट था? जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके हेड लेनिन है, वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि पीजेंट सबको हम एकत्रित नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्यों? सभी पीजेंट तो रिच, एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं. कुछ पीजेंट है जो पुअर है, कुछ है रिच है, कुछ है दूसरे के जमीन में काम कर रहे हैं, जिसको हम एग्रीकल्चरल रूरल लेबर बोलते हैं. दैट इज व्हाई लेनिन बिलीव्ड दैट all the farmers cannot be put in the same category. But जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी था, ये सेम कैटेगरी में उसको पुट करता था. मगर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ये एक पार्टी में नहीं समझता था. क्यों? इसका जो हेड थे वो कौन थे? लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन. राइट. तो अभी आगे हम थोड़ा ब्रीफली और डिस्कस करते हैं कि क्या था ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज लेटर डिवाइडेड. जो मैंने आपको बताया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द 1889, वो क्या हुआ था? लेटर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताया, द पार्टी स्प्लिट इनटू टू विंग्स. वन इज बोल्शेविक एंड another one is known as Menshevik. One is Bolshevik and another one is Menshevik. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, कोई भी sir. डाउट Yes, हो, sir. without hesitation stop me and ask. Right? So this party was divided into two, Bolshevik and Menshevik. So Bolshevik were the majority group of the workers of Russia, ये और हो गया, this is of Russia, under the leadership of Vladimir Lenin. Who is the leader? Vladimir Lenin.
Bolshevik were the majority group of the workers of the Russia under the leadership of Vladimir Lenin. They believed in the revolutionary method for the bringing about the changes in the society and the states. After the October Revolution, Russia became one-party state, that is the Bolshevik Party, which was renamed as the Russian Communist Party. The Bolshevik were able to bring about the successful revolution in Russia in 1917, and they changed the whole structure of the Russia and Russian society. The Bolshevik throw out that in a repressive society like Tsarist Russia, जो जारिस्ट रशिया था उसके जैसा पार्टी नहीं चाहती है. द पार्टी शुड डिसिप्लिन एंड कंट्रोल द नंबर ऑफ इक्वालिटी ऑफ द इट्स मेंबर्स. समझ रहे हो? यही एक पार्टी था जिसने अक्टूबर या फरवरी रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली कैरिड आउट किया था, और यही पार्टी का जो हेड थे वो थे कौन? व्लादिमीर लेनिन. इनके बारे में आगे हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं. 1917 से पहले कंडीशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ और रेवोल्यूशन शुरू हुआ. और मेंशेविक जो थे, मेंशेविक वेर द माइनॉरिटी ग्रुप, मतलब बहुत कम थे. ये मेजॉरिटी था, ये माइनॉरिटी था. जो मैं आपको बताया ना, जो ग्रुप था जो स्किल्ड थे वो लोग, दे बिलीव द पार्लियामेंट्री मेथड एंड पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन. इन लोगों को था पार्टिसिपेशन करना है किसमें? पार्लियामेंट्री मेथड में. सर मैं कॉल कर रहा हूँ क्लास में. हाँ. The parliamentary method and participation in election. They believed in what? जो मेंशेविक थे, parliamentary, and they thought that the party should be open to all. और यहाँ ये पार्टी मतलब कंप्लीट डेमोक्रेटिक वाली सोचते थे. और बोल्शेविक क्या था? सिंगल पार्टी ही रूल करेगा. समझ रहे हो? आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक, हाउ दिस पार्टी हैज बीन इवॉल्व्ड, व्हिच पार्टी later divided into Bolshevik and Menshevik. These are the questions may be created in the exam. So in that point of view, it are the very very important question. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. With this, today's lecture I am going to wind up. We will meet in the next